हेलो पीपल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिया वर्ल्ड में। आपके स्क्रीन पे हैं आपके बहुत ही प्यारे पी और आर। सो आज हम लेके आए हैं हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट पार्ट टू। 1 अब तक नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। सो पी, आपको इसके बारे में और क्या बोलना है? और पहले तो एक क्विक अपडेट गाइस कि आर ने अपनी ग्रेजुएशन फाइनली कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 8 सालों में 2014 में शुरू की थी और 2022 में कंप्लीट कर दी है। तो मेरी तो हो गई कॉन्ग्रेचुलेशन। कंप्लीट, लेकिन पी की अभी तक हुई नहीं कंप्लीट। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा है दुख। नहीं, कमेंट पे जाके लिख के आप इसके बारे में। दुख की बात नहीं है। असल में क्या है कि मुझे चीजों को पढ़ना बहुत पसंद है। तो मेरा मन ही नहीं करता कॉलेज से बाहर निकलने का। इसलिए बाकी वरना तो मैं यूं खत्म कर दूं ग्रेजुएशन अपनी। हाँ, एकदम बिल्कुल। आपका एक एक साल में हो जाएगा पूरा। होपफुली विश फॉर द बेस्ट। ओके पी। सो जब तक हमारी हॉरर स्टोरी होगी कंप्लीट, तब तक पी की भी कंप्लीट हो चुकी होगी उसकी ग्रेजुएशन। सो यस। व्यूअर्स, लेट्स अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, कुछ हॉरर होने वाला है। एंड एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर द हॉरर स्टोरीज। बिल्कुल। तो पीपल, अगर आपने अपनी सीट की पेटी बांध ली है तो चलिए आपको हॉरर स्टोरी से डराया जाए। तो पी, लेट्स स्टार्ट। So let's start the story. So my story is about my friend's brother story, whose name was Raghav, and this happened when he was 6 years old, and this happened in 1997. So his father got a new job in a district called Faizabad. They were given a two-bedroom flat in a factory housing complex. The house was old and had remained locked for the past 5 years. But since they were hard pressed for money, their dad insisted that the locked flat should be allotted to them instead of waiting for another one to be vacated, which they did not know when it will be vacated. So once they started moving in there, things started to go seriously wrong. So initially, small things started to happen. Like every other night, they would hear footsteps or feel like somebody was jumping over the backyard wall and heading to the roof. There was also a huge, strange burnt mark on the bathroom wall. And no matter how many times they painted over it, somehow it would peel off and the mark would be visible again. Now, imagine the situation are that there's a burnt mark on the bathroom wall, and they're painting it again and again so that the burnt mark should not be visible to them, but still it is visible. So if this happens in real life, it is so scary. So these things were happening, and once his dad went on an urgent trip to a nearby town, and in the house only his mom, his sister, and Raghav was there. So in one of the night, his mother shouted and ran to the bedroom, ran to Raghav and his sister's bedroom, and switched on all the lights. She was sweating and mumbling something. So both the kids got scared because they had not seen her mother in such a frantic situation. So the mother somehow took the control of the situation and opened the main door and called the security guard. So Raghav, what he overheard from his mother's conversation with the security guard was that his mother saw a half man burned standing next to her bed and quietly staring at her. रियली? Did you listen that? रियली So वैसा? मतलब बॉडी थी उसकी या फिर परछाई वगैरह ऐसा कुछ थी? परछाई नहीं तो एक्चुअली क्या है आज राघव ने ये चीज ओवर हियर की जो उसकी कन्वर्सेशन उसकी मदर और सिक्योरिटी गार्ड थी। तो मदर ने एक तरीके से कहा कि उसने हाफ मैन बर्न का एक चेहरा देखा और वो उसे ऐसे शांति से उसे देख रहा है चुपचाप। तो जब कोई रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज देखी ही नहीं होती, तो अगर आप पहली बारी में ऐसा कुछ देखो तो आप रिएक्ट नहीं कर पाते और आप उससे हटना चाहते हो। तो बस उसने वो एक हाफ मैन बर्न्ड की शक्ल देखी और वो चली गई, मतलब भाग के फिर वो इनके रूम में आ गई। तो दिस वाज द सीन। ओके, तो द सिक्योरिटी गार्ड आल्सो गॉट रियली स्केर्ड and he went around the house but he could not find anything, and that episode was brushed aside. So after this, a number of strange occurrences started to happen.
Like the tap would randomly turn on and off, light would flicker, even if they weren't touching the switches. But the रियली most ऐसे horrifying, मतलब रियल में भी हो रहा था क्या मतलब हाँ हाँ, ये थोड़ा फिल्मी लगेगा, बट दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड. This thing अच्छा actually happened. But now I will tell you, R, what was the most horrifying incident that happened. It happened on a cold night in December. So Raghav was sleeping in his room with his sister, and it was covered with a mosquito net, and a bulb was also lit in the bathroom. So there was like plenty of light all around the room. So in the middle of the night, Raghav woke up. He was feeling very restless, and he felt like something was moving under his bed. So he looked at his sister, and she was asleep. And what he saw beneath his bed, it shocked him. It तो shocked him. एक And मिनट उसने अपने से हाँ, जाकर देखा कि उसके अंदर है क्या चीज या फिर उसको अपने आप दिख गई नहीं, ऐसा पहले उसे 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 कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ मूव कर रहा है उसके बेड के अच्छा नीचे. अच्छा ठीक है. अब उसे उसने देखा उसकी सिस्टर सो रही है, तो कुछ अगर ऐसा होता है ना, कभी कभार आपके साथ में सो रहा है, कुछ कुछ वॉइस निकाल रहा है, कुछ ऐसा होता है कभी कभार, बट ऐसा नहीं था. बट फिर उसने कुछ देखा ऐसा नीचे, जिसे उसकी फट गई. तो हुआ क्या, अ बर्न्ट आर्म अ बर्न्ट आर्म वाज एक्सटेंडिंग अंडर द बेड, and it was crossing the mosquito net, and that hand had only 3 fingers. गॉड कैन यू गूज़बम्प्स आ इमेजिन गए यार दैट ये कि सुन के उसने एक एक जलता हुआ हाथ देखा, हाँ और जो उसके मॉस्किटो नेट के अंदर से जा रहा था, और उस मॉस्किटो नेट में सिर्फ 3 उंगलियां थी. तो अच्छा ही एक कुडंट मिनट मूव. हाँ. बॉडी नहीं थी क्या ये सिर्फ हाथी था बस नहीं उसका नहीं, उसे सिर्फ हाथ दिखा. एक हाथ दिखा, जलता हुआ हाथ, जिसमें सिर्फ 3 उंगलियां. सोचो, अच्छा 3 उंगलियां सिर्फ. सो ही कुड पसीने नॉट आ गए मूव. मुझे सुन के बस हाँ, he could not move, and so he got frozen, and after a few seconds the hand went away, and he covered himself in the blanket and broke down. So imagine this, like if he was a kid of just 6 years old and he saw something like this and he had no clue what to do. तो इन जनरल क्या होता है कि वो सोचता है कि मॉर्निंग तक का वेट करते हैं हम लोग, कि मैं अभी कंबल में छुपा रहता हूँ, और अभी मैं किसी को कुछ दिखाने लायक नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है. So after this incident, they moved out of the house and moved into a company guest house. So they later got to know that the tenant of the house, the previous tenant of the house, was a chemical engineer who lived there with a family. ओ So once he was on a business trip, he had an accident and died. And while his dead body was on the route to the same house in the complex, his father locked himself in the bathroom and immolated himself. So the burnt mark was from that same incident also only. And two ओके bodies were cremated in that day, in that single day. One of that engineer, one of that chemical engineer, and one of his father who committed suicide. So that incident happened 5 years ago when his father joined the company, and the house had remained all the time closed till his father joined. So, like after hearing the story, Raghav could make the connection, and maybe the hand was of his burned father, who is still looking for his son. So dude this was the story. it was very scary type too Yeah. scary So too this happened in real life, and can you imagine, like a mother saw a vision of a burned man's face, and what Raghav saw was something very unusual, that a hand was just crossing his mosquito net. Like it fell to him. Probably it was not, but it fell to him, and it had only 3 fingers. And one more scary thing was that the burned mark, वो पेंट लगाने के बाद भी आ जा रहा था. मतलब कितनी स्केरी चीज है. कुछ हाँ एक धब्बा होता है तो हमें लगता है कि हट जाए, वो दिखना नहीं चाहिए. अगर वो चीज बार बार आए तो कितना डर लगे. तो ये कहते हैं. रियल में ये हुआ है ना मतलब कहाँ पे हुआ हाँ, इसका फैजाबाद में हुआ था, जहाँ पे उसके ऐसा फादर की पोस्टिंग हुई थी. अच्छा और ये फैक्ट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट था. तो ये थी प्रॉब्लम, बट अब तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गए. तो अब तो ये प्रॉब्लम नहीं है, और ये 1997 में हुआ था. तो आर कैसी तो लगी पीपल स्टोरी? आप लोग ने ये स्टोरी पी की देखी इतनी स्केरी थी आप लोग को आई होप आया होगा
गूज़बम्प्स अच्छे से आए होंगे। सो हमको तो बड़ा डरावना लगा, हमको भी लगा, पी को भी लगा। सो बिल्कुल। वेट फॉर द नेक्स्ट स्टोरी व्हिच इज़ ऑनबोर्डिंग राइट नाउ। हाँ, राइट। तो आर अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दो प्लीज अब। यस। सो मेरी स्टोरी है 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की। एक का नाम था अनिमेश, दूसरे का नाम था सुमन और तीसरे का नाम था सौरभ। तो वो लोग सेकेंड ईयर में थे, तो वो लोग घर ढूंढ रहे थे। तो उन्हें कहीं घर नहीं मिल नहीं रहा था उन्हें कहीं घर। तो वो लोग एक ब्रोकर के आए पास, और ब्रोकर उन्हें एक दिखाया, वहाँ पे फ्लैट दिखाया उन्हें जाके। तो उन्हें वो अच्छा लगा फ्लैट, तो वो ले लिए। तो एक दिन ऐसा ही वो लोग तीनों कहीं घूमने निकल रहे थे, ठीक है। तो वो जो फ्लैट था उसका जो नेबर था, ठीक है, वो एक दिन उसको आके बोलता है, सब तो अच्छा है ना यहाँ पे, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ होगी दिक्कत तो आके करना मुझे इन्फॉर्म। और उसने एक स्पेसिफिकली वो तीन दोस्तों को वो तीन बोला था कि नॉनवेज खा के इस फ्लैट में आना ही मत। उसने फिर वो जो तीन थे दोस्त, वो सोचे ये ऐसे ही बोल रहे होंगे कुछ। तो तो नॉनवेज कुक कर सकते थे फ्लैट में कि सिर्फ बाहर से खा के आ जाओ? नहीं, खा के नहीं आना है, खा के नहीं आना? खा अच्छा। के एकदम नहीं आना। जो नेबर थे वो ऐसे ही बता रहे थे, तो हाँ। वो लोग ऐसे हैवी ले लिए, हाँ अच्छा ऐसा कुछ होगा, अरे ऐसे ही बोलते रहते अंकल लोग। तो वो लोग हैवी ले लिया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही 1 महीना निकल गया, 2 महीना ऐसे ही निकल गया। तो फिर अचानक से जो सुमन था, उसको ऐसा लगने लगा कि कुछ हम लोग जो यहाँ पे हैं 3, हमारे साथ कोई ऐसा भी है। हाँ, उसको अंदर से ऐसे इंट्यूशन आ रहा था अंदर से, ऐसा कुछ है ना। तो वो एक बार ऐसे, मतलब उन लोग का एग्ज़ाम का आया था, तो वो लोग पढ़ रहे थे, मतलब एक रूम था, उसमें 3 तो बेड्स लगी हुई थी, ठीक है, सब पढ़ रहे थे। तो उसमें वही सुमन एक बार लेटा हुआ था ऐसे ही, ठीक है। तो उसने अचानक से खिड़की पे देखा कि कोई लटक रहा है ना। अच्छा। मतलब उसका हल्का सा कुछ दिख रहा, कि उसको ऐसा लगा कि कोई कुत्ता वगैरह की ऐसे शैडो हो सकती है। लटका हुआ है। नहीं, कुछ असली में लटक रहा है, और अच्छा। और ऐसे से हो रहा है हल्का, है ना। अच्छा, मूव तो कर रहा है। उसको, हाँ। हाँ, सुमन को लगा, तो उसने सौरभ को ये बात बोली, अनिमेश को ये बात बोली। तो वो वहाँ पर जाकर देखे, वहाँ पर नहीं था कुछ। तो वो लोग फिर टेरेस पे आए ऊपर, और ऊपर ऊपर वो जाके देखे, ऐसा नहीं था वहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही सुमन को हल्का लगने लगा था कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। लेकिन सब उसके बाद ऐसे ही 1 महीना ऐसे ही और निकल गया। तो उसके बाद दीपावली का आया वक्त, ठीक है, काली पूजा होती है ना। तो उस समय अनिमेश और सौरभ वो लोग घर निकल गए, और सुमन नहीं गया था उस समय, है ना। तो सुमन को वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो तो अनिमेश और जो सौरभ थे वो बोले कि यार तुमको यहाँ पर ऐसा ऐसा ये होता है, फील वगैरह होता है, तुमको कुछ मतलब तुमको डर लगता है, तो हाँ तुम निकल जाओ, ऐसे भी अब हम निकल रहे हैं। तो जब अनिमेश और सौरभ निकल गए, तो फिर अगले दिन उन लोगों ने कॉल लगाया उसको, सुमन को लगाया कॉल, ठीक है। और उसने कॉल नहीं उठाया, और उसने जब कॉल बैक लगाया तो वो बोलता कि घर आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ मैं भी। मतलब अच्छा, वो सुमन जो रह शौक रहा था होता है घर कि पे वो भी पहुंच गया? हाँ, वो घर चला गया, वो भी अपना, है ना। अच्छा। हाँ। तो उसको मतलब अनिमेश को लगा कि अभी तो 1 दिन पहले वहीं पे था, वो वहाँ पर कैसे आ गया। तो उसने फिर, सुमन ने एक चीज़ उसको बोली कि जितना जल्दी हो सकता है वो फ्लैट से निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ होगा जो हमें नुकसान हो सकता है उससे हम लोग को, ठीक है। तो ये सुमन बोल उसको रहा ऐसा है? कुछ, हाँ, अनिमेश और सौरभ को जब उनका कॉल आया था उनको तब, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। तो उस समय उनको लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, हमें तो आज तक ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, फील हुआ है। तो जब दीपावली का जब हुआ,
खत्म हुआ चीज़। तो फिर 1 महीना बाद जब गया, और सुमन तो वहाँ से निकल चुका था ना, अपना सामान वामान लेके वहाँ से निकल चुका था, ठीक है। तो अनिमेश और सौरभ, ठीक है। तो सौरभ एक दिन ऐसे ही कहीं बाहर निकला हुआ था, ठीक है, और अनिमेश था रूम पे, अकेला था रूम पे, ठीक है। और वो ऐसे टेरेस पे आया वो, और वो ऐसे घूम फिर रहा था, ऐसे यहाँ वहाँ देख रहा था लोगों को। फिर जब वो उतरने लगा सीढ़ी से, जब वो ऐसे उतर रहा था, उसको अंदर से फील हुआ कि उसके अंदर से होके कुछ बाहर निकला। किसके? उसको ऐसे लगा, अनिमेश जब हाँ हाँ टेरेस पे था, वो जब वो उतरने लगा वहां से, तो उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर से कुछ निकला ऐसे कुछ। हाँ तो उसको मतलब वो भी शॉक में आ गया हल्का से, ये क्या चीज़ था। तो उसने फिर से इग्नोर मार दिया इस चीज़ को, और वो उतर के रूम पे आ गया अपना, ठीक है। वो बैठा हुआ था रूम पे, और अजीब तो उसको स्मेल आने लगा, कुछ सड़ा हुआ स्मेल आने लगा पूरा, है ना। तो उसने सोचा कि स्मेल आ कहाँ से रहा है, और अचानक से जो रूम था उसका ठंडा होने लगा पूरा पूरा। जो होता है ना, हाँ, अचानक से ठंडा होने लगा पूरा, उसको कभी होने लगा। और फिर उस समय एक चीज़ ये था कि लाइट्स नहीं थे उस समय, कट ऑफ थे उस समय लाइट्स के, ठीक है। उस समय वो कोई एकदम स्मेल आ रही है, सड़ी हुई स्मेल आ रही है, और कुछ ऐसा हो रहा है, और बहुत ठंडी लग रही है। तो उसने ऐसे ही ऊपर, मतलब ऊपर से कुछ से टप सा उसका कुछ गिरा यहाँ पे उंगली के पास। उसने ऐसे उसको स्मेल किया, वो बहुत ये मतलब बहुत मतलब बहुत ही डर्टी टाइप का स्मेल थे, ठीक है, जहाँ की वॉमिट आ जाए उससे। तो उसने ऐसे ऊपर उसने ऐसे देखा, ठीक है। ऊपर में उसको 2 आंखें दिखाई दी उसको, 2 आइज, ओनली 2 आइज, आई बॉल्स थी, ओनली 2 आइज, नहीं, ये पूरी आंख जो होती है ना ऐसे, पूरी आंख। अच्छा अच्छा, हाँ, ओ ओनली 2 आइज दिखाई दी। उस समय ऐसे कोई भी अगर रियल लाइफ में ऐसे कुछ देख ले उसकी, तो हमें लग भाग जाएगी। जाएगा उस वो फ्लैट से। बेहोश हो गया वहीं पे, वहीं हाँ पर बेहोश उठा वो। एक दिन पूरा निकल गया, तो वो उठा वहाँ से, और फिर भागा वो रूम पे। एक्चुअली जो नेक्स्ट मॉर्निंग सौरभ आया, वो खटखट किया डोर को, तो वो उठा, खोला जाके, और फिर वो उतरा, और फिर इंसिडेंट उसको बताया। फिर नेबर के आया वो पास, तो नेबर उसको ऐसे ही बताया स्टोरी। वो उससे पहले पूछा क्या तुम नॉनवेज में आए थे, मतलब हाँ खा पी के आए थे क्या नॉनवेज। हाँ तो वो बोला हाँ, खाते रहते हम लोग। तो वो बोला कि एक्चुअली तुम लोग यहाँ जब रहते हैं ना, उसके पहले एक लड़का रहता था, उसका नाम था मनोज। उसको कुछ लड़के आए थे, और वो इसी उसको या इसी रूम में मार दिए थे, उसको लेके घेर के उसको कोई लोग मार बाहर दिए। से आए थे और उन्होंने मनोज को हाँ मार दिया। अच्छा। हाँ, और उसकी बॉडी वहाँ पे 3-4 महीने तक होती थी, और सड़ गई थी उसकी पूरी बॉडी। तो पुलिस वगैरह को लोकेट नहीं कर पाई थी मनोज की बॉडी, ये कहाँ नहीं है? हुआ, 3-4 महीने बाद लगा, हाँ, जब स्मेल वगैरह आने लगे, तो उसके बाद लगा कि हाँ कुछ है। तो वो जो स्मेल था, वो मनोज के वजह से। और फिर उस समय जब एनिमेशन और फिर बात पता लगी, तो लोग अपना उठाया, वहाँ से निकले, और ये रियल लाइफ इंसिडेंट में ऐसा हुआ है। बट इसमें ये एक क्वेश्चन है मेरा कि नॉनवेज का क्या कनेक्शन है? नॉनवेज का ये है कि मतलब कि वो जो नेबर थे, वो ये बोलना चाह रहे थे कि वो जो नॉनवेज खा पी के आता है, ठीक है, उस पे वो अट्रैक्ट होता है वो। हाँ, जो वहाँ पे स्पिरिट है या कुछ और भी है, अच्छा वो से अट्रैक्ट होता है उस सब चीज़ से। अच्छा इसलिए अच्छा नॉनवेज में एकदम मत जाना। अच्छा। और ये कौन सी सिटी में हुआ था ये? ये हुआ है तुम्हारा इधर, अ, ये सुने हो, जबलपुर एमपी। हाँ 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 हाँ। हाँ, वहाँ का है। ओ, मतलब वही है कि ये चीज अगर आप रियल लाइफ में सोचो तो आप सोचो कि मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या करता, तो आप कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे चल रहा है आपके गिर जाए तो बहुत करना सिचुएशन है। ये सब चीज़ मतलब आई होप पीपल, अगर आपने स्टोरी अच्छे से उसको देखा है, सुना है, तो गूज़बम्प्स तो आपको अच्छे से आए होंगे, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी फर्स्ट टाइम सुनी, तो मुझे तो आ गई थी भाई। सही है।
तो इसमें कैसे मतलब उसकी बॉडी लो, मतलब मैं मनोज का समझ नहीं पाया कि उसकी क्या सोल उधर ही रह गई, मतलब कि वो हाँ, हॉन्ट कर रही थी कि सोली क्या? रह गई होगी ना उधर, हाँ, जब उसकी बाकी बॉडी इसका वो रीजन वहीं पे पता थी चला कि तीन ऐसा चार मनोज महीने को से। क्यों मारा, कि ऐसी सिचुएशन हुई, नहीं, ऐसा वो कुछ है? रीजन नहीं पता। हाँ, अच्छा। बस ये था कि बॉडी वहाँ पे थी, तीन चार हाँ। महीने हो गए जब उसकी आइडेंटिटी पता लगी तो वो लड़का था, और उसके अच्छा। बाद से ये सब चीज़ स्टार्ट होना हो गया था अच्छा। ओके, गॉट इट। उसके हाथ से। सो पीपल, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी। आई होप हमारी हॉरर स्टोरी आपको और अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो जाके कमेंट पे जाके लिखिए, हम आप इसका थर्ड पार्ट इसका लेके आएंगे, और वो और भी और इस हॉरर एपिसोड रहेगी। से एक एडवाइस ये रहेगी कि फ्लैट हमेशा अच्छे से चूज करिए, क्योंकि आप दोनों की स्टोरी में देखिए फ्लैट ही गड़बड़ चीज थी, फ्लैट ही। हाँ, तो एकदम नेक्स्ट टाइम और जब भी ऐसा एक्चुअल में ये सब चीज़ होता है, मतलब जो हाँ, होता है, फ्लैट वगैरह में ये होते हैं ना इंसिडेंट, ब्लैक मैजिक स्पेशली। मतलब कभी भी आपको कोई भी फ्लैट से बैड वाइब्स आए तो उसको, आपको पता है क्या, आपको कंप्लीट नो कर देना चाहिए उस फ्लैट को, चाहे जितना भी अच्छे यस। प्राइस में मिले, जहां भी लोकेशन हो। बट अब क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। या, सो पीपल, we are signing off from your screen, PNR, and we will get back to you with another content and another video and part 3 too. Till then, please like, share, and subscribe our videos, guys.